why are you doing this podcast for all of us? Because you invited me. And why you accepted the invitation? So it's time, we shake ourselves up and share our consciousness. Then you begin to realize that Aham Brahmasmi. So this realization that I am the whole universe is going to dissolve all differences that we artificially create. We have taken this conversation to a next level, to a global level. मुझे लगता है आज आपकी जर्नी को एक बार हम खोल के देख लें. I'm all set, The first thing, foremost thing, what is enlightenment and how, as a person or you as a spiritual guru, understood that you are enlightened? A moment before you were sitting in a hall, a very cozy hall, and then suddenly you are out in the open in the space. So are you going to miss it? And suddenly it appeared as if the sky has fallen on me. It is absolutely silence and the space is wide open. That moment it was so ecstatic, so joyful, so light. How long you have been practicing, what practices you were doing? मैं पढ़ता था और ध्यान लगाता था, पढ़ता था और ध्यान लगाता था, पढ़ता था और ध्यान लगाता था. ये तो बहुत गजब का है. And in the meanwhile I was thinking what to do with my life, what to do with my life. And then it occurred to me, I can't answer this question, what is best in life, unless and until I answer this question, what is life? नमस्ते व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब आज? एंड आप सब देख सकते हैं टुडे वी आर इन अ फिजिकल सेटअप. वी आर डूइंग इट इन अ स्टूडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड वी आर डूइंग इट विद अ वेरी स्पेशल गेस्ट, श्री प्रभात अग्रवाल. ही इज एन एनलाइटेंड मास्टर, तत्वदर्शी, founder of the Last Center organization, which is committed in transforming lives. He is chairman at the Ashland Institute of Technology, and he is my spiritual guru. I was like 19 years old when I first saw him. It's emotional. I was innocent, and the way he showed up in that session, it just blew my mind up. I was stubborn, I was selfish, I was ambitious. And collaborating with someone was impossible for me. He made it possible today. So, thank you. My pleasure, my privilege. Very warm welcome. Very warm welcome. I'm so honored to have you here. My pleasure and my privilege, right? It's a transformation which keeps me going. And that's you are a living embodiment of, no? Thank you so yes, much. Tell me. हम लोग, as you know, we are here for a podcast, and on the show we use it as a practice that we set an intention why we are doing this, and we surrender the session to the divine. Let him take charge of this. So if you allow, let's meditate for a few minutes and connect with that divine energy, and then we can go deep into that conversation. So you want to begin with the meditation? Yeah, just for a few minutes. Yeah, we can. Okay, so everyone, we can close our eyes. Okay. Slowly open your eyes. Bhaiya, I invite you to share your intention with us. Why are you doing this podcast for all of us? Because you invited me. And why you accepted the invitation? Because my understanding is that you're also committed to the awakening of the consciousness, and the times we are living in, especially more so, the challenges we face as a humanity, the challenges we face as nations, as individuals, as societies,
different caste, religion. Unless and until we begin to rise vertically, evolve vertically, and expand our consciousness, awaken the sensitivities, and be evolutionary creative, and come together in a shared space in co-creation. We are very nearly doomed, from individual to the nations. The biggest challenge today is how willing are we to meet people from different caste, creed, backgrounds, history. The divide between the rich and the poor is ever increasing, right? So the environment is decaying. We have climate change as a big issue. So, we are facing a meta crisis. And unless and until you are willing, we are willing as a human consciousness to let go of our littleness, the narcissistic, selfish, myopic view and vision or perspective of life. The challenges are huge. I don't want to name any politicians, but the thing is, what's happening today is now we are in a phase of deglobalization now, which cannot be good for anyone. No? So the kind of leaders are coming up in different countries across the planet is. We are facing a huge crisis today, and anyone who's slightly interested in wisdom, intelligence, love, harmony, beauty, the dignity of life, will see that things are getting difficult by the day. Right? If you go back to your great historical figures, Buddha, Jesus, you talk about Bhagwan Mahavir, you talk about Krishna, Ram. If those people happen to come back on this planet, they'll be hugely disappointed. And what's happening in their name, it's lots of myths. So it's time, we shake ourselves up and share our consciousness and look at the highest potential and the capacities we can build for togetherness that we are. Because potential capacities and intelligence and creativity are all the dimensions of collaboration, right? So we working as a team humanity will be quite a different game. You may have individual geniuses like Einstein, or 500 years back Leonardo da Vinci. So you may have a few geniuses, but a few geniuses can never create a great world or a universe. What you need to work is as a team, and that team requires you to first have great relationships, deep relationships, and having great relationships requires you to expand beyond our littleness, our selfishness, and that's only possible through spiritual dimension. You cannot preach about this. You cannot lecture about this. This is about self-awakening, because within we are the whole universe. If you go for an inward journey and begin to see yourself as you are, within you are, you're the highest self that you are, then you begin to realize that Aham Brahmasmi. So this realization that I am the whole universe is going to dissolve all differences that we artificially create in all kinds of different names, age, gender, religion, caste, you name it, okay? Societies, history, nations, states, you name it. It appears as if humanity is hell-bent upon creating divisions.
We want to separate ourselves from others. We want to distinct ourselves from others as if we are different, superior, higher, more important, more relevant, extraordinary than the rest. I mean, but it's a shared space. Okay, it's a shared space, and that happens when you begin to go within. You begin to realize, okay, I'm as good as anyone else is, or as bad as anyone else is. So you need to turn inwards, okay? If you really want to. And 21st century, you can't be. Those days are gone when you can be a monk on a Himalaya, because Himalaya is also now is also connected with GPS and all. So you have all the technology, and so it's time, we have this these kinds of broadcasts or podcasts, okay, where we can just share our consciousness and invite people, and more people join this awakening of the consciousness to the highest. Yeah. ऐसी intention के साथ you have taken this conversation to a next level, to a global level. इस perspective से आज तक मैंने किसी conversation को अभी तक नहीं देखा, even बाकी podcast में भी और अपने में भी इतने बड़े level से अगर एक conversation को हम देखें तो we understand the responsibility, the words we are going to exchange. So thank you for making this so big. It is big. I mean, I'm not the one who's making it big. It is big. I mean, you awakening to your highest is as big as it can be. I mean, nothing gets bigger than this. Okay, so this is the highest call. This is a clarion call. This is the call for the infinite. This is the call for the eternity. This is a call for the absolute. This is a call for the highest. Definitely. So nothing bigger than this. Okay, it doesn't get bigger than this, as they say. 100%. I have seen you over the years, and it's not just your teachings, not just the workshop, but how you show up in your life. It has brought an unshakable trust in me, in you, in spirituality, in knowing all these dimensions. But मुझे लगता है आज आपकी जर्नी को एक बार हम खोल के देख लें पूरी तरीके से. We establish you in your full capacity, in your wholeness, in your authenticity, and we let others tap into your consciousness, your wisdom, and the way you have seen and observed your whole journey. And हम लोग भी वहाँ पे as a साधक देख पाएं कि जब हम इन scenarios में होते हैं तो how can we progress? How can we come out of this? What kind of perspective we can choose out of 1,000 things that are in front of us? So with that intention, let's just start that podcast. Let's just begin this conversation, and I'm all set, the first thing, foremost thing, what is enlightenment, and how, as a person or you as a spiritual guru, understood that you are enlightened? What was that experience, if we can understand it in words? See, the point is, it is as big as it can be. So I think this is the one question that I'm often asked: how will you come to know that you are enlightened? It's very simple, okay? So we are sitting in this hall, and so assume that in a given moment the roof goes above your head, okay? It just ruptures, it just breaks away. The walls are taken away. A moment before you were sitting in a hall, a very cozy hall, and then suddenly you are out in the open in this space. So are you going to miss it? You can't miss it, okay? So this is as big as it can be, because it is about the dissolution of the self. So the experience that I had was, I think it was pretty long years back, okay? So 1997, 15th September, I remember the date. And it was about late in the evening, about 9:30 p.m. So during those days, there used to be a news broadcast by Doordarshan. So पहले वो हिंदी में आता था, फिर वो इंग्लिश में न्यूज़ आती थी. So I think 8:30 was Hindi news and 9 o'clock was English news. So 9 to 9:30. So I was having my dinner. I had this. I watched the news,
and I was moving down because the house we were living in I was living with my parents. So my parents' room was on first floor, my room was on the ground floor, and I was having my dinner with my parents on the first floor. So after finishing my dinner, I just I was moving to my room. So I came out of the dining room and I was in the lobby and then in the gallery, and I was about to take the stairs down. And then suddenly I realized that I just don't know who I am. And I had this experience where I had lost control on my body. I could not move my hand, I could not move my fingers, I could not move my legs. And suddenly it appeared as if the sky has fallen on me. And I went completely silent. I didn't have any single thought. Suddenly it was all blank and there was a complete dead silence over there. And I began to realize that I just don't know anything. I don't know who I am. And then the next moment I realized that I just don't have no uneasiness, no tension. It is absolutely silence and the space is wide open. So no desire, no anxiousness, no ambition, no feeling. It was a total, rather than saying blackout, a whiteout. Okay. And then again, I regained the consciousness, so to speak. Consciousness means I came back to the realization who I am. And I just don't know how long it took, because the moment I came to the realization who I am, okay, as the limited identity that I have always living as, first thing I noticed was that my body was not the same, right? So it felt like, my fingers are not moving the way they should move, and there was this experience that something has moved out, right? And in that moment, I realized that this is something deep, and I had this intuitive understanding that this is enlightenment, intuitive understanding, but I was not sure, because I was, in that rush of moment, one thing also happened was the whole memory of my life, since childhood, and it just flashed through my eyes, and then it disappeared completely. And in that moment, there was so much of peace, there was so much of fulfillment, there was so much of an ecstatic joy was there, and I was feeling so light, right? So rather than moving downstairs, I moved upstairs and moved on the roof. And the moment I went on the roof, it started drizzling. So I sat down over there, and it was drizzling, and I was again lost in that silence, in that space. And I was sitting there. I just never realized how much time it has gone by. But I was sitting there, but I was not there. Right? Physically, I was there, but I was not there. And I sat there in the drizzle, totally wet, not realizing I'm wet. But I was there, absolutely peaceful, silent, no desire, no ambition, nothing to want, nothing to achieve, nothing to give up, nothing to attain. And that moment, it was so ecstatic, so joyful, so light, and I was relishing being myself. So I just sat there. It was a timeless zone. So nothing was moving, nothing was happening to me, and I was just deeply absorbed in this whole consciousness of who I am, in the wide open spaces, absolute nothingness. And then when I realized again, okay, that this is who I am, okay, I regained that identity of who I am. And then I pulled myself up.
and walked downstairs. And I still remember, when I went to my room, there was a clock as I opened the door, and that clock was showing the time was 12:50 at night. So from 9:35:37, okay, around that moment to 12:50, I was there on the roof and just sitting there in absolute silence. And it was so. And then next, I was awake almost the whole night, but I had a little nap. And when I again woke up in the morning, the first thing I did was again go back to the roof. And there was so much of plantation and greenery around, and it appeared so much more green. The colors were so vivid. It felt like as if, आज की भाषा में बोलो तो from analog transmission to the digital transmission, like there is a high definition. So वो जो quality shift है, from this normal color to the high definition colors, that was huge. And the luminosity was so big. And I realized at that moment that something has happened, something big has happened, because I was no longer the same. And then again, in the ensuing week, I lost my voice. I was not able to speak anything, and then this process continued for almost. I didn't put the foot out of my house for next few weeks and maybe a couple of months. I still remember from 15th September, the first time I walked out of my house was 27th November. That was the wedding day of my cousin. So I was not participating in anything. I was just in my room, absorbed there, sitting there, doing nothing, just being in that meditative space, in that consciousness, relishing myself. So, and the very day I moved out, 27th November, was quite a different day for me because the hustle bustle of the world outside was, it appeared different, it looked different, it was totally different. That was the moment, okay? So that was the whole experience. And that's so liberating, so peaceful, so joyous, so ecstatic. जब आपके पास वो सब फीलिंग्स भी नहीं थी, वो एम्प्टीनेस थी, वो जॉयफुलनेस थी, कैन यू से कि आप इसी रेल्म में थे, आप किसी और रेल्म में थे? कॉन्शियसली उसको अगर देखना चाहें तो, वर यू इन दिस रेल्म, अदर रेल्म्स, वर यू हैविंग अ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस? This was a universal experience because the open spaces were so wide that this tore apart the whole identity, limited identity that we carry ourselves as. Okay, it was so huge, it was so big. I could feel I'm not in my body. I could feel that I don't have that control over body as I used to have, and the whole rush of energy that happened thereafter. So my life was never the same thereafter. My life has completely changed since then. For next 3 years, I had this huge rush of energy. I was during those times, I didn't know at that time that I was ill or sick, okay? But later it was diagnosed that I was suffering from tuberculosis, which I was not aware of. But because I was suffering for tuberculosis, and I used to feel so tired and so exhausted all the time when this happened. But the rush of energy that happened, that was there after this was so enthralling. Before the experience, you were tired. Before this experience, I used to feel so exhausted and tired all the time, right? Okay. But after this, there was such a huge rush of energy that tiredness went away totally. And I was so energetic, so fresh, and the healing was there, and it was so huge and big. As I described this, it's like the roof has been taken away, the walls have been taken away, and now you're sitting in an open space. So it is something you just can't miss. And then you begin to see the qualitative shift in your intelligence, your creativity, your perspective. Everything begins to shift thereafter. Your taste, your hobbies, everything. It's not the same anymore. No? So,
The whole approach towards the life, the way you were interacting, what was the shift in that space? I mean, I was so peaceful all the time. I was so joyous. I think I can say that it took me another 1.5 to 2 years to first time experience any negative emotion thereafter. There was no negative emotion whatsoever for next 1.5 to 2 years. I still remember the day when I first encountered a negative emotion. And I still remember the date when that was, and I was like, oh my God, ये कहाँ से आ गया दोबारा से? Because I assumed there for 1.5 years, as long as I was there, I assumed that now there will be no negative emotion thereafter. So it took me at least 1.5 to 2 years to have first negative experience thereafter. And it was totally joyous. I was just enthralled. I was joyous. I was nothing to do, nothing to achieve, nothing to be. Like the life is over on one side, and the other side, the life has for the first time really begun. जब आपने कहा कि आपके पास वहाँ कोई एम्बिशन नहीं था, कुछ चाह नहीं थी, कुछ पाना नहीं था, जब इतनी सारी एनर्जी आई, आपको लगा नहीं अब करूँ क्या इसका? There was nothing to do, do for what? And I was just totally relishing it. I was like surfing on the joy of ocean. So that was so liberating, so enthralling that these questions were not there. In fact, it was such a thoughtless state, the thoughts have gone away. Amazing. And it used to took me time to understand or grasp anything. That was one of the features of it. So I've lost my memory. So it always used to take me time to remember anything because I will have to then intentfully, just focus on it. And then things will come back. Okay, so this is so and so, so and so, so and so. I began to forget the names of my cousins and all. And I just, kya naam hai iska? Oh, yes. So, that's how it began to happen. And then the whole concept and the whole understanding of life. So it took me some time to. How did you then that is one of the features, right? So you lose your memory and all that, and then you have to figure out every time you think of something, how does this work, okay? So you'll have to recall and just begin to, as if you are studying it for the first time. It's always like begin from fresh, okay? Begin from zero all the time. Begin from zero all the time. Begin from zero all the time. Right? So that began to happen. जिन गलियों में मैं बहुत बार गया हूँ रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है यार कहाँ से जाना था राइट मुड़ना था लेफ्ट मुड़ना था so it's like you are exploring it for the first time. So that was one of the features of it. And so how long it took you to reach this state? I mean, how long you have been practicing? What practices you were doing? There are two phases to it as I always think back. One phase was an unconscious phase. Like I was doing anything and everything for this, but I never knew I was doing for this. And how that began was I was very ambitious from very beginning. So I was so performance oriented that I have to perform well. So as a student, I will focus on my studies and want to do anything and everything. And then I began to realize that if you are too perfectionist, then what always happens was happening to me, right? I was so perfectionist that I was so focused on the result. The result should not go here or there. Perfect, 100% to 100%. And when you are focused so much of the result, then what you generate or begin to have is the fear of failure. True. And then the fear of failure is there, then, you have these butterflies and then this anxiety and all that, and this whole pressure is there. And what this pressure did to me was, and I never knew about this, I was curious as to where is this anxiety coming from? What is this pressure? What is this fear? And I began to, focus on that. I began to meditate on that.
मैंने एक प्रैक्टिस को स्टार्ट किया एंड दैट प्रैक्टिस वाज कि मैं किताबें कॉपियां बंद करके मैंने कहा छोड़ो ये बात की बात है, पहले ये जो अंदर हो रहा है पहले इसको जरा देखा जाए, हो क्या रहा है, मामला क्या है. And then I began to realize that if I just don't do anything and I go still, and I am after watching my breath for a moment, and then I begin to focus on the emotions, being still, totally awake, and watching, focused, then the fear would go away. The anxiety would go away, and I began to. और उसके बाद फिर एक liberation होता था, and I begin to really enjoy that. मैंने कहा तो बहुत गजब का है. So it was like I have discovered a meditation, but I never knew that this is a meditation. Okay, यहाँ कुछ लोग हैं, मेरे पास रिक्वेस्ट सामने से आ रहा है कि हिंदी में है, तो ये पॉडकास्ट मुझे मालूम नहीं आपका अंग्रेजी में है कि हिंदी में है, भाषा है. भैया we can use any language, जैसे भी आप दोनों भाषा का उपयोग कर सकते हैं हम लोग. Okay, so with all permission. तो मुझे पहली बार जो है वो ये अनुभूति हुई कि ये तो बहुत ही आनंद में है, गजब है, ये तो अद्भुत है कि आप जो है वो ध्यानस्थ हो जाओ. ध्यान शब्द तो नहीं था उस समय, पर आप जो है फोकस्ड हो जाओ, आप स्थिर हो जाओ और आप उसका पूरा दर्शन करो स्थिर होकर, विदा हो जाता है वो. तो मैंने कहा बहुत अच्छा है. तो मैं फिर अब क्या करता, मैं पढ़ता था और ध्यान लगाता था, पढ़ता था और ध्यान लगाता था, पढ़ता था और ध्यान लगाता था. जब भी चिंता हुई तो किताब बंद कर दी, ध्यान लगाना शुरू कर दिया. फिर वो ठीक हो गया तो फिर पढ़ना शुरू कर दिया. एंड दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग. For how long? And I think must have gone for 3-4 years. 3-4 साल ऐसे ही चलता रहा, मुझे पता ही नहीं था. And then I happened to got admission into this engineering college. पहुंच गया धक्के से, मैं पहुंचा, सोचा भी नहीं था कि अभी I'll become an engineer. And that happened because I was ambitious. And ambitious में मैं नहीं था, हुआ ये कि मेरे एक मित्र ने जो है मुझे चुनौती दे दी. हाँ, मैं 12th स्टैंडर्ड में था और मेरा एक जो है एक फ्रेंड था मेरा, वो फर्स्ट आया करता था, मैं सेकंड या थर्ड आता था क्लास में. तो उसका फर्स्ट पक्का था, मेरा सेकंड थर्ड पक्का था. तो इट वाज लाइक एक जॉइंट वेंचर था हम दोनों का. एक तीसरा मित्र और होता था हम लोगों का. वो जो है वो पढ़ाई लिखाई में उन आपकी रुचि कम होती थी, वो जरा मौज मस्ती करना और जो है घूमना फिरना, और हमारे साथ इसलिए घूमा करता था कि अपने पिताजी को इम्प्रेस करके रहेगी, मेरे मित्र जो है पढ़े लिखे हैं, पढ़ाकू दोस्तों के साथ मेरी संगत है, अपने पिता के आगे नंबर बनाने के लिए वो हमारे साथ घूमता था. और कहीं वो आगे पीछे घूमना होता था तो हम बताता था कि भाई हमारे साथ बैठा पढ़ रहा है. जाता था वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के पास में, और वो घूमने गया है, पान खाने गया है, मस्ती करने गया है. अब घर बोलता था कि वो मैं वहां बैठा उन लोगों के साथ पढ़ रहा हूँ. तो वी वर हैप्पी. आई मीन ठीक है, इसका काम हो जाए, हमारा काम हमारा क्या जाता है. वन डे क्या हुआ कि वो जो फर्स्ट आता था क्लास में, उस मित्र ने जो है वो कोई उस समय आता था ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स. तो अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो तो 2 ही कोर्सेज होते थे, अग्रवाल क्लासेस का बॉम्बे का और ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स मैड्रास से आता था. तो ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स का जो सबसे डिफिकल्ट जो उनका एक कोर्स था 4 महीने का जेईई के लिए, उसको बोलते थे वाईजी फाइल. जिन लोगों ने उस दौरान अगर किया, अगर अब तो शायद ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स है नहीं, राइट? दे वाउंड अप. सो उन दिनों जो है वो वाईजी फाइल हुआ करता था. तो वाईजी फाइल जो है वो वाईजी फाइल को कर रहा था. तो मैंने ऐसी उत्सुकता से पूछ लिया कि भाई ये क्या है. अब मेरे फादर जो है वो बिजनेसमैन रहे, हमारे घर में कोई पढ़ाई लिखाई का बहुत माहौल था नहीं. अब मेरे पिता को भी लगा करता था कि भाई ठीक है, बच्चे पढ़ लिख लेंगे जितना पढ़ना है, बाद में बिजनेस में आ जाएंगे. वैसे ही खुश थे कि बच्चा जो है अच्छा कर रहा है, इंग्लिश में और मैथ्स में अच्छा है, इसी बात से खुश थे मेरे पिताजी. सो वो जो है वो वाईजी फाइल लेके बैठा हुआ था. मैं पूछ बैठा, मैंने कहा ये क्या है. तो जो ये जो हमारा तीसरा मित्र था जो कि मनमौजी था बिल्कुल, और उसने बोला कि अरे तेरे लिए नहीं है, इसी के लिए है, ये क्लास में फर्स्ट आता है, पढ़ने आईआईटी की तैयारी करे. मैंने कहा आईआईटी क्या होता है?
अरे तू छोड़ना, तेरे लिए नहीं है। अरे मैंने कहा मेरे लिए कैसे नहीं है? अरे भाई अब तो IIT में जाना पक्का है, अब तो जाएंगे। मैं कभी काम करेंगे। तो हुआ ये कि वो फिर मैंने YG फाइल वगैरह करना शुरू कर दिया। हुआ यूं कि भाई मेरा एडमिशन तो हो गया, उसका हुआ नहीं। So that was his whole story, and then I landed up over there. और वहां सारे there are so ambitious people all over there, you know. और मैंने रियलाइज कि IIT में खास बात थी उन दिनों में कि फर्स्ट ईयर में सबको पता था कि फोर्थ ईयर के बाद वो लोग क्या करेंगे, कि हमें सिविल सर्विसेज में जाना है, कि हमारे को कैट का एग्जाम देना है, हमें MBA करना है, कि हमारे को US जाना है। आई मीन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आइडिया, या मुझे ऐसा लगा कि सबको आइडिया, मेरे को आइडिया नहीं है। the way I saw it, most of the people have the idea कि what they want to do with their life, but I have not the slightest of idea what to do with my life. फर्स्ट ईयर गुजर गया, सेकंड ईयर गुजर गया। अब हुआ ये कि वहाँ एक प्रोफेसर, कुछ ह्यूमैनिटी ऑप्शनल कोर्सेज भी होते हैं इंजीनियरिंग के साथ में, मार्केटिंग का एक कोर्स हुआ करता था। वहाँ एक प्रोफेसर हमारे होते थे, हरीश चौधरी, नाम मुझे अच्छे से याद है उनका। वो थोड़े अलग व्यक्ति थे। वहाँ विपश्यना के कैंप वगैरह भी लगते थे ना। विपश्यना के कैंप में मैंने 1-2 बार सेवा भी दिया। तो मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया विपश्यना का, एंड आई वाज स्टडीइंग बुद्धिज्म एज वेल। And that professor was different because he will talk less about marketing and more about this life and all. And I was really inspired by that man, that professor. And in the meanwhile, I was thinking what to do with my life, And then it occurred to me, I can't answer this question, what is best in life, unless and until I answer this question, what is life? And the moment it struck to me, I have to figure this out, what is life? Then the life completely changed thereafter. I started reading less of engineering, more of philosophy, psychology, right? I mean, sciences, I had some understanding already. And I realized science doesn't have an answer because all science does is put the question to the next reference level. Right? You name it differently, right? So why a ball is moving? Because the bat has kicked it, है ना? गेंद क्यों बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है? क्योंकि बल्ले ने मारा उसको। बल्ले ने क्यों मारा है? क्योंकि बल्लेबाज ने हाथ घुमाया है। मतलब you are putting the question back, okay? कि भाई there is a momentum में change क्यों आया? क्योंकि there is a collision. Collision क्यों हुआ? Because there is an external force. पर external force कहाँ से आई है? तो you keep going on, one question back, है ना? हर प्रश्न के उत्तर में एक नया प्रश्न पूछ लो। तो विज्ञान जो है आंसर तो देता नहीं है कोई। जीवन क्यों, जीवन कैसे काम करता है, विज्ञान आंसर देता है। जीवन क्यों, इसका कोई आंसर ही नहीं, आज तक भी नहीं है। Did you figure out कि what is life? And that is where that you figure out when you go within, right? So जो प्रश्न है वो पूछते and then you begin to realize कि ये तो बुद्धि के पास जाना होगा, है ना? जीवन का दृष्टिगत जब तक अनुभव ना हो, जीवन का शाश्वत दर्शन हो, तो बोध में उतरता है कि जीवन क्या है। What is life cannot be answered in one simple line, right? Because life is what you make it out to be, but the point is कि जीवन क्या है ये किस शब्दों में समाया नहीं जा सकता। इसके लिए तो सीधा स्पष्ट दर्शन आवश्यक है जीवन का। And that's when you started meditating? तब तक तो मेडिटेशन में कर ही रहा था, मतलब ये प्रश्न भी जिंदा थे, मेडिटेशन में कर रहा था, और मेडिटेशन करते जब जीवन का दर्शन हुआ तो अवाक रह गया। तो फिर ये अनुभूति हुई कि भाई ये तो शब्दों में समाया ही नहीं जा सकता, राइट? और जब दर्शन, ये तो गूंगे का गुड़ है कि आप इसे चख लो, आप इसको देख लो, आप इसको सुन लो, आप इसको शब्दों में पिरो नहीं सकते। पिरोया जा सकता है, चेष्टाएं होती हैं, होती भी रहेंगी, और वो
विभिन्न संदर्भों में जो है वो उपयुक्त भी है, लेकिन वो परिभाषा जो है वो सदा सीमित है, वो सदा एक सापेक्ष संदर्भ में ही परिभाषित किया जाएगा, राइट? सो it cannot, there can be no absolute definition. All definitions are relative by design, right? By nature. So that's how it is. No? Make sense? Yeah? Makes sense. So you were inspired by your professor, you were meditating, you had these questions, and one led to another. You had that blast of an experience. I had this huge zest to find out what life is. Because एक चीज और भी मेरे साथ हो रहा था. I used to experience this huge, this whole anguish or the pain within. About this inability to grasp life. So somehow it was it doesn't used to make sense, जो सबसे ज्यादा पीड़ा देता था, जो कष्ट देता था, वो था कि what is the meaning of life? Because it never used to make any sense. Nothing was making sense, एक तरफ हम कहा करते थे भाई कोऑपरेट करो, मैं कोऑपरेट करूंगा तो फर्स्ट वो आएगा, मैं तो आऊंगा नहीं, फिर कंपटीशन भी है. Now this whole dilemma, this is a moral dilemma, right? What is right, what is wrong, and how do you define what is right? कितना कंपटीशन और कितना कोऑपरेशन, किस हद तक मुझे किसी के काम करना है? करुणा रखो तो भाई जो मैंने ओढ़ रखा है वो दूसरे को पहना दो, राइट? लेकिन घर में कहते थे भाई तू सब सेवा करो, लेकिन दायरे में रह के करो. भाई दायरा क्या होता है और दायरा डिफाइन कैसे होगा? जीसस ने तो कहा है कि कोई आपका कोट मांगे तो उसको अपना क्लॉक है, समवन आस्क यू योर कोट, यू गिव योर क्लॉक एज वेल. क्लॉक समझते ना आप, जो रोब होता है. अब कोट मांग रहा है तो पूरा जो रोब है वो रोब भी उठा के दे दो, और जिसको कुछ दे दो उससे दोबारा कभी कुछ मांगो मत. मैंने कहा जीसस तो बड़ा गजब कह रहे हैं. और मैं था व्यापारी घर में, ये तो तगादा होता है वहां तो, राइट? तो कितना दे दो और मांगो मैं, करुणा तो ये. फिर आता था फिर ये बात भी सही है कि जिया कैसे जाएगा, जो प्रश्न उठा करते थे कि करुणा किस हद तक, प्रेम की कोई सीमा है क्या? सीमा तो होगी भाई, तो ऐसा जीवन कैसे चलेगा, व्यवहार कैसे होगा? So there is a whole contradiction, right? And this was so confusing. और ये समझ नहीं आता था कि how to make sense of all this. और ये तब तक समझ में नहीं आ सकता था, ये मुझे समझ में आ गया था कि जब तक आप खोज ना लो जीवन का अर्थ क्या है, the meaning of life, does it have any meaning or it's just chaos? It's all anarchy. It's just an accident. Is life an accident? बिग बैंग हुआ और एक्सप्लोजन हुआ और हम आ गए, ये सब कोइंसिडेंस है बस, कि पृथ्वी जो है ऐसी लोकेशन पे है कि बस हल्का सा इधर होता तो गर्म होके सूख जाता, उधर होता ठंडा होके सूख. हाउ कम इट इज सो परफेक्टली प्लेस्ड? राइट. कोइंसिडेंस? नो. साइंस तो कहता है इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस. It all began with a big bang and will end up in a big fizzle or a collapse, right? One of the two options. Stephen Hawking तो ये कह के चले गए. So where will it go? Is this all हारागिरी by ऐसे ही हो गया, एक्सीडेंट हो गया. I took birth by an accident. Okay? दिखता भी ऐसे ही है, एक्सीडेंट नहीं होता. आप लोगों का जन्म जो है, अपने ऑडियंस में बैठे हैं, क्या आपका जन्म प्लान हुआ है? पेरेंट्स ने प्लान किया था, एक्सीडेंट हुआ था? आप मिले कैसे किसी से? आप अपनी वाइफ से कैसे मिले? बच्चे जो हुए वो कैसे हुए? उसी से क्यों विवाह आपने किया? Doesn't used to make any sense to me. ये all it coincidence है या all planned है? What about destiny and what about hard work? भाग्य और कर्म का क्या संबंध है? एक तरफ कहते हो कि फल आपके हाथ में, फिर कहते हो मेहनत करो. अरे क्या मतलब है मेहनत? जब फल अपने हाथ में नहीं तो मेहनत क्या करनी है? मौज ले. जो दे रहा है परमात्मा दे रहा है. ये घरों में हम सुनते हैं बचपन से. मैं सुनता था
और ये सब इतना कॉन्ट्रडिक्टरी लगता था। इनकी किस बात पे भरोसा करो? लगता है माँ बाप, दादा दादी, बुआ, फूफा, मामा, मौसी, ये सब जो बोलते हैं ये इनको पता है ये क्या बोल रहे हैं। एक सेंटेंस में वो दोनों कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं। फिर बाद में मुझे एहसास हुआ इनको भी नहीं पता बेचारों ये तुक्का लगा रहे हैं सबके सब। So this never used to make any sense. Okay, this was so confusing. So this was all. अब मर्यादा क्या है? फिर मर्यादा पुरुषोत्तम की पूजा भी हो रही है। अब फिर वो समझ में आता है ये पता नहीं राम जी क्या कर रहे हैं। राम जी बाली को तो चिपके मार रहे हैं। कृष्ण जी क्या कर रहे हैं? ये भी है? ये पॉडकास्ट है, प्लीज यही रुक जाओ। हाँ, आपको मुझे रोकना होगा है। आई लव टॉकिंग, आई लव टॉकिंग, सो आई कैन। I understood. You understood? Okay. पर एक भाव जो मेरे पास आ रहा है, मुझे लग रहा है जो आपका पास एम्बिशन था, मतलब जो आप एम्बिशियसनेस थी आपकी, somehow it triggered everything. I mean, वो बेस में कहीं तो था, वो कंफ्यूजन के, वो जिंदगी को ग्रास्प करने के, हाईएस्ट को छूने के, तो कुछ क्रेडिट उसको भी है आपके एम्बिशन को? पूरी तरह से 100%. Had I not been so ambitious, my life would not have turned out this way. I was so ambitious. मुझे लगता था जिंदगी में ऐसा कोई काम करो जिसने कभी किया ही नहीं। और अगर आप ऐसा सोचो कि ऐसा काम करो जो किसी ने किया ही नहीं, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या करो? क्योंकि अब महात्मा गांधी दोबारा हुआ नहीं जा सकता, देश आजाद हो चुका है। प्रेसिडेंट बनोगे तो, प्रधानमंत्री बनोगे तो 15 हो चुके। बेस्ट जॉब इज बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, 40 तो वो भी हो चुके थे। तो क्या करोगे आप? कोका कोला बनाओगे तो पेप्सी पहले से है, कारें खूब सारी बन रही हैं। व्हाट डू यू डू? ऐसा क्या करो जो किसी ने ना किया हो? नोबेल प्राइज कब से चला आ रहा है नोबेल प्राइज। एंड देन आई रियलाइज कि भाई ये तो बुद्धा को देखो। What about this man गौतम बुद्धा? 2500 वर्ष बाद भी इसकी तूती बोलती है। So there was something amazing about this man, Gautam the Buddha. And I was really curious to know, what is this man? There's something different about this man. He inspired you? Or he really inspired me. मैं बुद्धिस्ट लिटरेचर को पढ़ना मैंने शुरू किया, फिर तो उसके बाद फिर वेस्टर्न फिलॉसफी को मैंने उसके बाद थोड़ा सा अध्ययन किया। बट ईस्टर्न फिलॉसफी में बुद्धिज्म वाज लाइक, बचपन में मैं तो आस्तिक हुआ करता था, बाद में मैं नास्तिक हो गया। लेकिन बुद्धा, इट वाज थैंक्स टू बुद्धा दैट ही मेड मी आस्तिक ऑल ओवर अगेन, यू नो। क्योंकि बुद्धा ये दिखते नास्तिक हैं बुद्धा, बट बुद्धा इज नॉट नास्तिक, वो आस्तिकों में आस्तिक है। इट इज सो authentic, जिसे कहते हैं, the authentic faith is Buddha's faith, okay? Because he talks about no faith, but his faith is real authentic, okay, with no baggage whatsoever. Yes. Okay. Audience में किसी के पास questions? Anyone? जैसे आज की डेट में तकरीबन कितने एनलाइटन मास्टर होंगे, और अगर वो हैं अलग अलग जो भी काम कर रहे हैं, तो सब साथ आके क्यों नहीं काम करते ताकि एक बड़ा कुछ हो सके? Well, I really don't know the number. Anyone's guess, okay? So I don't know कितने होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि आज 21वीं सदी में पृथ्वी ज़्यादा जागृत है, और हम लोगों के पास ये सौभाग्य है कि आज प्राचीन काल के तुलना में जो है वो अधिक अनलाइटेंड मास्टर्स होंगे। पर संख्या आई डोंट नो। बाकी क्यों साथ मिलके काम नहीं करते? हाँ, कर सकते हैं, बट मुझे नानक की जो कथा है वो बड़ी प्यारी लगती है कि गांव में वो गए थे, और सुना होगा आप लोगों ने कथा कि गांव में गए तो बहुत आदर हुआ, सत्कार हुआ। दूसरे गांव में गए तो बहुत अपमान हुआ। तो जिस गांव में अपमान हुआ था, वहाँ से जब विदा हो रहे थे तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि भाई तुम सब लोग एक साथ रहो, मिलजुल कर रहो, इकट्ठे रहो।
फिर दूसरे गांव पहुंचे जहां उनका बहुत आदर सत्कार हुआ, बहुत सम्मान हुआ। वहां से विदा लेने लगे तो जाते जाते उन्होंने आशीर्वाद दिया कि भाई तुम सब लोग बिखर जाओ। तो जो उनके शिष्य थे वो बेचारे बहुत उद्विग्न हो गए और पूछा कि देव आप जो है वो ऐसा, पिछले गांव में दुष्ट लोगों का गांव था, एक से बढ़कर एक हिंसक लोग वहां वो गाली गलौज हो रहा था, और आपने उनको आशीष दिया मिलजुल के साथ रहो, तुम्हारा एका बना रहे। और ये इतने प्यारे मीठे लोग, इतने प्रेमी श्रद्धालु, इनको क्या आप बिखर गए। उन्होंने कहा कि भाई इस एक एक व्यक्ति को जो है वो चेतना जागृति करनी चाहिए, और बिखर कर जो है हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में जाकर जो है। So I think so is the maybe the will of the God. They want to work everyone, but I think collaborations are always welcome, right? So ऐसा नहीं है कि अलग अलग रह के ही काम करना, but और फिर आध्यात्मिक दृष्टि से अगर आप देखोगे तो the life at its highest is always working together, right? Life is always working together. क्योंकि कोई पीछे से धक्का दे रहा है, कोई आगे से खींच रहा है, दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। So there is a natural alignment of consciousness at its highest. So whoever is doing or working, or wherever they are working, anywhere they are working, are taking their life forward. तो उस evolutionary framework के अंदर they are playing their role, right? It doesn't need to be physically together all the time. कोई गठबंधन तो है नहीं पॉलिटिकल पार्टीज की तरह से कि एक पार्टी बनाओ, साथ इकट्ठे हो जाओ और सब आ जाओ। इट्स लाइक a shared alliance, वो चल रहा है। So it is about honoring the will of the God, no? जैसा प्रभु कहे वो करना है, तेरी इच्छा पूरी हो। So it is listening to the will of the God and doing as He commands, as He, she, it commands. That's what it is. I think. Right. Yes. भैया आपकी जो साधना रही काफ़ी रिग्रेस रही, आपने सारी फिलॉसफीज भी पढ़ी, कुछ जो आपके साथ ठहर गया हो, जो आपको लगता हो कि एज अ साधक अगर हम आज से प्रैक्टिस शुरू करें तो हम भी एनलाइटन हो सकते हैं? I think it is not about primarily the literature you read. It is मुख्य रूप से बात है आपके संकल्प का, आपकी जीवटता का। जीवन की खोज जो है वो उत्सुकता से मुमुक्षा हो जाए। एक गहन जो है वो मुमुक्षा, एक गहन प्यास जो है आपके भीतर कि जीवन को पाना है पूरा का पूरा, कतरा कतरा, रोआ रोआ। जीवन को उसकी उत्कृष्टता पे जीना है, जीवन को उसके विराट स्वरूप में जीना है, जीवन को गहराई से जीना है। एक तृप्त होने की अभिप्सा हो, एक मुक्त होने की अभिप्सा हो, एक संकल्प जगे कि मुक्त पूर्ण समग्र जीवन जीना है। ये जो संकल्प है ना, ये जो प्यास है, ये जो अभिप्सा है, ये मुख्य रूप से ये आवश्यक है। और अगर ये प्यास आपके पास है, फिर जो करने योग्य होगा वो आप करोगे, whatever it takes, okay? You need to go to a state where I'll do whatever it takes. अगर आपने वर्ल्ड चैंपियन होना है, आपने नोबेल प्राइज जीतना है, आपने कुछ ग्रेट करना है, देन यू हैव टू गो टू दैट फेज ऑफ लाइफ वेयर यू से कि जो करना होगा करेंगे। ओके, सो इट इज एक ऐसा साहस चाहिए कि जहां मैं पूरा जीवन दांव पे लगाने को तैयार। हम लोग बोलते हैं ना द्विज, द सेकंड बर्थ, ओके, दिस द ट्वाइस बॉर्न, दूसरा जन्म जिसका हुआ है। तो जो पहला जन्म विदा करके दूसरे की तैयारी होनी चाहिए। ये जो अहंकार है, क्योंकि अहंकार हर क्षेत्र में फैला हुआ है। मूल बात क्या है? मूल बात तो ये कि अहंकार के पार जाना है, अहंकार विदा होना है। और अहंकार विदा ऐसे होने वाला नहीं है। अहंकार विदा होगा जब आप पूरा का पूरी पूर्ण आहुति के लिए तैयार हो, तो विदा होगा।
पूर्ण आहुति के लिए ऐसा संकल्प चाहिए, स्पष्ट सुस्पष्ट संकल्प चाहिए कि व्हाटएवर इट टेक्स। आपने इतने सारे साधकों के साथ काम किया है, आपको क्या लगता है हम सब कहाँ चूक रहे हैं अपने संकल्प में? क्यों अभी तक नहीं है हम लोगों के पास वो दृढ़ संकल्प? सुरक्षा का खोज, सुविधा की खोज, और अहंकार जो है वो विभिन्न विभिन्न आयामों और मुखौटों और बहानों से आपको पकड़ लेता है कि ये तो जरूरी है। जब आ जाता है कि ये जरूरी है, इसको छोड़ के बाकी सब कर सकते हैं, तो फिर आप रुक गए, वहीं ठहर गए। सब कुछ छूटने की तैयारी होनी चाहिए। जब सब कुछ छूटने की तैयारी आपने करी, तब क्या आपको आपकी फैमिली ने, फाइनेंशियल चैलेंजेस ने, दुनियादारी ने बांधा, या आप कैसे निकले वहां से? ये सब होगा नेचुरली। जो है वो मेरे फादर बोलते थे, भाई हर व्यक्ति चाहता है भगत सिंह हो, लेकिन पड़ोसी का बेटा हो। तो तू कहाँ चक्कर में पड़ा है? पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छा खासा बिजनेस है, तू बोलता बहुत अच्छा है, क्यों अपना करियर बर्बाद कर रहा है? मेरे फादर ने, मेरे टीचर्स ने, मेरे प्रोफेसर्स ने, सबने समझाया। मामा ने, मौसी ने, अंकल ने, आंटी ने, हर व्यक्ति आपको बैठा के समझाएगा कि भाई ये उम्र थोड़ी होती है, तो बुढ़ापे का काम है। लेकिन मेरा अनुभव यह है कि जितनी कम उम्र में आप ये कर लो उतना सरल है, जितनी उम्र बढ़ जाती है उतना ये जटिल और कठिन हो जाता है, क्योंकि आपके उत्तरदायित्व बढ़ जाते हैं, आपका मुखौटा बहुत बड़ा हो जाता है, आपकी प्रतिष्ठा, छवि, इज्जत सब है। एक उम्र में जाके आप बहुत कुछ नहीं भी, फेमस हो जाए तो और मुश्किल हो जाएगा आपका, क्योंकि फेम हैज इट्स ओन ट्रैपिंग्स। फिर आप खुद अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से नहीं चलते, फिर आपका जो नाम है वो आपको चलाता है। That's how it all works. क्या लामास में ज़्यादा entitled है? Because they catch them by the age of 7. मैंने तिब्बत जाके स्टडी तो नहीं किया, बट दूर से देखने में आई डोंट रियली थिंक कि इट मेक्स मच ऑफ ए डिफरेंस, बिकॉज मैंने ऐसे बहुत लोगों से मैं मिला हूँ जो 30 साल, 35 साल, 40 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन आप उनका वो मुख खोलते हैं तो पता लग जाता है कि ये क्या बोल रहे हैं। तो जीवन में कुछ घटा नहीं है, जीवन में कुछ सुंदर हुआ नहीं है, जीवन में चेतना उतरी नहीं है। तो ये जो इट्स नॉट अबाउट कि आप कितने लंबे समय से साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि लोग हैं जो पूरा जीवन गुजार दिए हैं लेकिन कहीं पहुंचे नहीं। आप माइक ले सकते हैं प्लीज? टेक द माइक। At the age of 7, because they pick up very early. As you said, कि earlier you start, the better it would be for entitlement. Yeah, it is definitely. The better you start, the earlier you start, the better it is. No doubt about that. It's just like any other mastery. You start at 7 to play tennis, and then you become a Wimbledon champion or a French Open or US Open champion by you are 18, 19, 20. It just happens that Russians were such a huge success in chess because they started early. But not in the case of entitlement, enlightenment. Same applies to enlightenment as well. You know, the earlier you start, the better it is. But I'm not saying you have passed that age, okay? क्योंकि जब आरंभ करो हैं तभी सवेरा है। तो इसलिए लेकिन ये है कि अगर आप पूछेंगे तो कम उम्र में आरंभ करना आसान होता है, क्योंकि आपका अहंकार अभी इतना सघन नहीं हुआ है। अभी आपके पास एक चंचलता है, एक मासूमियत है बचपन की या किशोर अवस्था की, और वो मासूमियत जो है वो आपको, आपकी शुद्धता जो है वो आपको सहयोग देती है। जीसस ने कहा ना, दोज हु आर प्योर इन द हार्ट शैल इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। जो शुद्ध है वो जल्दी पहुंचता है। इसलिए स्टार्ट अर्ली, क्योंकि उम्र के साथ आप धीरे धीरे छल कपट सब आ जाता है, सब कलाएं आ जाती है। With all due respect to elderly people over here, वृद्धावस्था में आप बहुत कुटिल हो जाते हैं।
भैया आज के टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में और इतना सोशल मीडिया और इतना वास्ट कोलैबोरेशंस रहता है, एंगेजमेंट्स रहती है, मैंने तो बहुत से स्पिरिचुअल गुरु से ये भी सुना है कि अभी तक तो हम ये बताते आ रहे हैं कि तुम्हारी बॉडी नहीं हो, तुम सोल हो। अगले 10 साल में हमें ये बताना पड़ेगा कि तुम अपना सोशल प्रोफाइल नहीं हो, तुम बॉडी भी हो। ऐसे एरा में ग्रस्त रह के क्या एनलाइटनमेंट हो सकता है, या सन्यासी एकमात्र यात्रा है? मैंने सन्यासी होने का संकल्प ले लिया था, लेकिन सन्यास उस ट्रेडिशनल रूप में अगर आप देखोगे तो मैंने कभी लिया नहीं। सो आई एम वन एग्जाम्पल कि आपको घर छोड़ना आवश्यक नहीं है। एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए भी नहीं? दैट में सपोर्ट, दैट में हेल्प। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, भिन्न है, और उनको इट इज अ रोड यू विल ट्रैवल फॉर द फर्स्ट टाइम। आपको लोग मिलेंगे, आपको बुद्ध कहा करते थे अपदीपो भाव। सो हर यात्रा आपकी, हर व्यक्ति की यात्रा अनूठी यात्रा है, अनोखी यात्रा है। और जब भी आप चलते हो इस मार्ग पे, तो आप पहली बार चल रहे हो पूरी मानवता में। नो वन एल्स हैज वॉक्ड द पाथ दैट यू आर गोइंग टू वॉक। लेकिन हाँ, क्योंकि हम सब एक साझा जीवन और एक साझा चरित्र है हम सबका, साझा गुण है हम सबके, ये अवगुण है, तो कुछ जो है वो यू कैन वॉच सम शेड्स, ओके, देयर इज सम कॉमनैलिटी बिटवीन अस, और उनको देखते हुए कुछ इशारे किए जा सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि मैंने तैयारी कर ली थी कि संन्यास लेना है, विवाह नहीं करना है, और मृत्यु की तैयारी है, सब कर लिया था। लेकिन उस सब की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ऐसा लगा जैसे परमात्मा बस आपकी तैयारी ही देखना चाहता है। तो मेरी अनुभूति कुछ ऐसी है कि परमात्मा जो है ना, वो आपकी बलि चाहता नहीं है, अली की बलि जैसे है ना, कि वो तैयार हुआ बलि देने को, तो फिर संकल्प अब्राहम को बोला कि अब बलि की आवश्यकता नहीं। तो बात यह है कि संकल्प हो, तैयारी हो, खट जाता है। लेकिन ये अब नियम नहीं हो सकता, क्योंकि मन तो कुटिल कह सकता है कि नहीं चलो हमने तैयारी दिखा दी, हो जाएगा काम। अब हो सकता है वो आहुति मांग ही ले, तो आहुति हो सकती है, संन्यास भी हो सकता है। और अगर आप पूछोगे कि क्या अगर कोई ले ले संन्यास और कुछ वर्ष ऐसा जीवन जिए तो सहयोग, हाँ सहयोग देगा, क्यों नहीं देगा। क्योंकि जब आप गहन भीतर ध्यान में चले जाते हैं, तो फिर आप पूरा अपना जो है वो जो आज तक की आपका इतिहास है, जो आपके शंखाराज हैं बुद्धिज्म के शब्दों में, जो जन्मों जन्मों का जो कर्म बंधन है, जो प्रारब्ध है, जो बद्रीनाथ जी की भाषा में जो है दम भाव नाम का जो राक्षस है, उसके जो कवच है, तो सहस्त्र कवच है उसके पास। तो उन कवचों को जो है वो एक एक करके जी भैया। ऑडियंस में क्वेश्चंस? यस, नमस्ते भैया। नमस्कार भैया, जैसे मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरी 2 डॉटर्स हैं, तो ऐसे हम जब जीवन जी रहे हैं तो ये लगता नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, और अगर ऐसा कुछ हम स्टार्ट भी करते हैं तो सोसाइटी में ही लोग कह देते हैं किन चक्करों में पड़ गई अभी से। राइट। और ऐसा खुद को भी कई बार अनुभव में आता है कि जीवन में कोई दुखद घटना हो गई है या हम स्ट्रेस में हैं, तो इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। भाई मौज है, भरा पूरा ससुराल है, पैसे, फ्रीडम, ऐसे ही मायका है, तो क्यों जाना है इस तरफ? क्या ज़रूरत है स्पिरिचुअलिटी की? कोई ज़रूरत नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज़ वन थिंग विच इज़ विदाउट नीड। अगर ज़रूरत लगे तो फिर आप आध्यात्मिक नहीं हो। आध्यात्मिकता यात्रा है ज़रूरतों से मुक्ति की। हर ज़रूरत एक बंधन है, राइट? यू फील सफोकेटेड बाय द नीड्स यू हैव। इस सफोकेशन से मुक्ति ही अध्यात्म है। अगर आप जीवन को प्रफुल्लता से, आनंद में, सौंदर्य से,
विकासोन्मुख होकर जीना चाहते हो, जीवन को उसकी उत्कृष्टता पे जीना चाहते हो, तो अध्यात्म आपके लिए है। जीवन को गहराई से जीना है, जीवन को तृप्त होकर जीना है। अगर आपका संकल्प है कि जीवन में कोई अफसोस ना हो, देन यू आर स्पिरिचुअल। कि जीवन को ऐसा जीना है कि पछतावा ना हो, मौत की घड़ी में ऐसा ना लगे कि भाई काश मैंने ये किया होता। अगर आप जीवन में काश नहीं चाहते हो तो आध्यात्मिक हो जाओ, राइट। और जहां बंधन है, जहां जरूरतें हैं, मजबूरी है, एक ही है ना, ये शब्दों का हेर फेर है, बस जरूरत और मजबूरी एक ही बात है, तो वहां काश होगा ही होगा, क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज करोगे। सी द स्पिरिचुअल लाइफ इज एन अनकॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ। अगर आपने जीवन को जीना है कि बिना कॉम्प्रोमाइज के, उसकी श्रेष्ठता पे, उसके उत्कृष्टता पे, उसके पूरी विहंगम विराटता में, तो अध्यात्म आपके लिए। और अध्यात्म गुणों का विकास भी है। आई मीन इफ यू आर यूनिडायमेंशनल, it doesn't give you much fun. It's about being multi-dimensional. कि आपका जीवन जो है वो एक साथ आप कितनी बॉल्स को उछाल सकते हो। सो एक गेंद को उछाल के एक को कैच करना कोई बहुत बड़ी कला नहीं है, बट 50 गेंदों को एक साथ उछाल के। सो जीवन के जो गुणात्मक पक्ष हैं, अगर आप जो है वो विभिन्न दिशाओं में निपुण होना चाहते हो, कृष्ण ने कहा है ना भगवत गीता में, योगः कर्मस्य कौशलम, कि कर्म का कौशल ही योग है। तो जो कौशल अगर आपको विकसित करना है, जीवन को एक गुणात्मक रूप से गुणों से परिपूर्ण करते हुए, विभिन्न गुणों से परिपूर्ण करते हुए गुलदस्ता आपका जीवन हो जाए, तो वो जो एवोल्यूशन ऑफ वैल्यूज, द एवोल्यूशन ऑफ वैल्यूज हैपेंस थ्रू दिस जर्नी। You go through, you meditate, you contemplate, you work on it, you practice, and take life forward. अगर जीवन के लिए प्यास है, जीवन में गुणवत्ता की प्यास है, कृष्ण का बोल ही रहे हैं 10वें अध्याय में, 11वें अध्याय में, कि मैं देवताओं में इंद्र हूं, गायों में कामधेनु हूं। वो कहना क्या रहे हैं? वो इतना ही कह रहे हैं कि मैं श्रेष्ठतम में श्रेष्ठ हूं, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हूं, वो मैं हूं। तो अगर ये प्यास है आपके पास गुणवत्ता को लेके, जीवन में गरिमा हो, गौरव हो, सौंदर्य हो, दिस इज फॉर यू। आई मीन व्हाई, लेट मी आस्क यू रिवर्स क्वेश्चन, ओके, पुट दिस अदर वे अराउंड। इसको उल्टा करके पूछना चाहिए कि व्हाई वुड यू नॉट बी स्पिरिचुअल, व्हाई शुड यू नॉट बी स्पिरिचुअल। मेरे देखे तो बात दूसरी है कि अगर आप आध्यात्मिक नहीं हो तो आप जीवित ही नहीं हो, मुर्दा हो। जीवन ही आरंभ उसके बाद, आफ्टर यू गेट एनलाइटेंड यू एक्चुअली बिगिन टू लिव। उससे पहले जीवन तो था ही नहीं। मेरे देखे तो ऐसा मुझे अनुभव में आता। आई वॉज नॉट लिविंग टिल आई रियली हैड दिस एक्सपीरियंस, दिस डीप ट्रांसफॉर्मेटिव, दिस डीप रेवलेशन ऑफ लाइफ, राइट। सो जीवन को आप क्यों नहीं जियोगे? आप नहीं चाहते जीवन में सौंदर्य हो, प्रेम हो, करुणा हो, आनंद हो, आत्मीयता हो, बंधुता हो, गुणवत्ता हो, एक सफलता हो, एक उत्कृष्टता हो, गौरव हो, गरिमा। अगर आप ये सब चाहते हो तो आध्यात्मिक हो। What else do you need? Okay? अध्यात्म का मतलब ये तो है नहीं कि कोई मूर्ति लगाओ और फिर चंदन लगाओ और जो है तिलक लगाओ। दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। यू मे डू ऑल दिस, ओके, नथिंग रॉन्ग विद दैट। आप उस मार्ग से भी वहां जा सकते हो, पर आप आध्यात्मिक भी हो सकते हो। धार्मिक ना हो, आध्यात्मिक भी हो सकते हो। आप धार्मिक होके भी आध्यात्मिक हो सकते हो। आप आस्तिक होके भी आध्यात्मिक हो सकते हो, नास्तिक होके भी आध्यात्मिक हो सकते हो। नथिंग टू, परमात्मा को समेटा नहीं जा सकता। परमात्मा हर रूप में तत्पर है आपसे मिलने को, वो आतुर है। हम ही मना कर रहे हैं कि तू दूर रह हमसे। God is keen to meet us, right? So we are putting the blocks, right? That's how it is. एक चीज़ और है छोटी सी भैया, जैसे हम टीवी खोलते हैं या इतने लोगों को सुनते हैं, तो ऐसे सुन के ऐसी कोई इंस्पिरेशन तो नहीं आती कि ये जीवन में आ सकता है। तो हम ये भी कैसे चुन सकते हैं कि कहाँ जाएं स्पिरिचुअलिटी के लिए? क्योंकि ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ कुछ भला होगा।
सुबह से शाम तक प्रोग्राम्स आ रहे हैं टीवी पे। टीवी को तो बोलते थे ना, मैंने गलत सुना कि इडियट बॉक्स। तो आप वहां से अपेक्षा क्यों लगा रहे हो कि वहां आप कुछ ऐसा सुनोगे? हाँ, ये जो कैमरा है, कैमरे के पीछे यूजुअली लोग कौन जाते हैं? यूजुअली, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द सेलिब्रिटीज, अगर भीतर कुछ खालीपन है, लोग हम लोगों की तारीफों और प्रशंसाओं में जो है वो अपना जीवन की सार्थकता को खोजते हैं, तो आप सेलिब्रिटी हो जाते कि भाई इनसे अगर मुझे मत मिलेगा तो मेरा जीवन जो है वो, प्रमाण जो है वो दूसरों की वाणी में खोजते हैं, दूसरों की प्रशंसा में खोजते हैं। द पॉइंट इज दिस, सी इट दिस वे, अगर जीवन के लिए गहन प्यास है, एक मुमुक्षा है, तो आपको राह तो मिल ही जाएगी, जहां चाह वहां राह। आप यात्रा आरंभ करो, कोई ना कोई साथी मिल जाएगा, कोई सहयोगी मिल जाएगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरु को कैसे खोजे। ये बहुत प्रश्न है जो मैंने बहुत बार मेरे से पूछा गया है कि अच्छा हम कैसे पता करें कि ये उपयुक्त गुरु कौन है? ये जो गुरु है ये नकद है कि नहीं है? क्योंकि पाखंडी बहुत घूम रहे हैं, ढोंगी बहुत घूम रहे हैं, गुरु की वेशभूषा में बहुत लोग घूम रहे हैं। नहीं, ये प्रश्न मुझसे बहुत पूछा जाता है। तो मैं बहुत सरल है कि आप नकद शिष्य हो जाओ, आपको नकद गुरु मिल जाएगा। अगर आप स्वयं पाखंडी हो तो गुरु पाखंडी ही मिलेगा। अगर आप शिष्य जो है वो असली हो तो गुरु की परीक्षा आप ले लोगे, गुरु भी आपसे तंग हो जाएगा कि भैया तू छोड़, मेरा पीछा छोड़ यार, तू हटा, तेरे प्रश्न ही नहीं गिरते, इतनी बात थोड़ी पूछा करते। लेकिन अगर आप नकद शिष्य हो तो 10 प्रश्न पूछोगे, 50 पूछोगे, गुरुजी को चैन नहीं लेने दोगे। पता लग जाएगा गुरुजी भाग, अगर कोई गुरु जो है वो पाखंडी होगा, ढोंगी होगा, आपसे विदा ले लेगा, कहेगा छोड़ो भैया बहुत हो गया, अब तेरे सारे प्रश्नों के उत्तर तो मेरे पास है नहीं, तू उनके पास जा। नो, आपका कोच, आप टेनिस सीख रहे हो, आप क्रिकेट सीख रहे हो, आप फुटबॉल सीख रहे हो, आप टेबल टेनिस सीख रहे हो, आपका कोच बता देता है कि भाई मैं तुझे यहां तक ला सकता था, अब इससे ऊपर जाने के लिए आई रिकमेंड आप यू गो टू दैट कोच। ओके, मैं नेशनल तेरे को खिला सकता था, इंटरनेशनल के लिए तो भाई अब, राइट। सो आप यात्रा आरंभ करो। ये इन प्रश्नों में उलझने के ये प्रश्न जो है ना बहाने हैं, ये प्रश्न हमारे को रोकने के लिए सुविधाजनक होते हैं। फिर लगता है चलो हम क्या कोई मिलता है, आजकल सब भ्रष्ट हो गए, कहाँ आजकल अध्यात्म है क्या। अब कोई गुरुजी मिलेंगे तो फिर हम भी करेंगे, अब गुरुजी मिलेंगे नहीं, अब हमें कुछ करना नहीं, कितना सुविधाजनक है। आप यात्रा आरंभ कर दो, गुरुजी मिल जाएंगे आपको, आप नगद हो जाओ, आप बस गुरु की चिंता छोड़ो। और टेलीविजन से ज्यादा आशाएं मत बांधो। टीवी तो देखना भी नहीं चाहिए आजकल, कहाँ टीवी, सब चिल्लपाव, झगड़ा झांसा, कलहा कलेश सब। थैंक यू भैया। वेरी गुड भैया। वी आर ऑलमोस्ट नियर द टाइम, बट 2 लोगों के हाथ इधर और थे, अगर हम क्विकली ले सकें तो। यस यस, समय की पाबंदी आपकी तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं है। भैया नमस्ते। भैया, आई एम अ मदर ऑफ 7-year-old सन। हाउ डू आई इंट्रोड्यूस स्पिरिचुअलिटी टू माय सन? आपने बोला जितनी अर्ली एज में, मतलब मैं इसे ऐसे देखती हूँ कि लाइफ सॉर्ट हो पाए, फन हो पाए, ईज हो पाए, वो मैक्सिमम जी पाए, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर पाए, उसके लिए। देखिए, पहली बात तो आरंभ करना चाहिए स्वयं से। बच्चे जो हैं वो वानर स्वरूप होते हैं, वो माता पिता को देख देख कर ही सीखते हैं। तो जैसे आप करोगे वैसा वो करेंगे। तो अगर आपके भीतर एक रूहानियत है, आपके भीतर एक आत्मीयता है, आपके भीतर एक चेतना जागृति के प्रति एक अभीप्सा है, तो जिस आभा में आप जियोगे उसके अंदर उनका
स्नान प्रतिदिन होगा। दूसरा, आपका रिश्ता उनके साथ कैसा है, वर्क ऑन योर रिलेशनशिप विद देम। क्योंकि ध्यान रहे, मैंने अभी आरंभ में भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, कैमरा ऑन होने से पहले या बाद, मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन कि ये जो जीवन है ना, ये अपनी पूर्णता में, अपनी सृजनात्मक पूर्णता में, अपने विकासोन्मुख पूर्णता में प्रकट बंधुता में ही होता है ना। जीसस का एक वक्तव्य है कि wherever there are 2 or more people, ओके, बल्कि मेरे ख्याल से 4 है शायद, 2 कहा है या 4 कहा है, जिसने कहा है कि उन्होंने 2 लोग या 4 लोग जहां एकत्र हैं वहां मैं हूं। सो उस बंधुता में, उस साझा चेतना के भीतर ही परमात्मा अवतरित होता है। तो जो आपका रिश्ता है, दैट इज द की। उसको सिखाने की जगह, उसको जो है वो कोई मार्गदर्शन देने की जगह, आपका प्रेम, आपकी आत्मीयता, वो एक ट्रस्ट जिसे बोलते हैं, हाउ डीप द ट्रस्ट इज इन द रिलेशनशिप, उसमें बिलोंगिंगनेस कैसी है, उसमें आत्मीयता कैसी है। अगर वो रिश्ता अगर सुंदर होगा, वो रिश्ता अगर गहन होगा, गरिमापूर्ण होगा, देन ये यात्रा सरल हो जाएगी। फिर आप अपनी चेतना उसके साथ साझा करोगे। आप में से कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, आपने भी अगर किया होगा, कि अगर आप किसी ऐसे टीम के मेंबर हो जो बहुत अलाइव है, बहुत किकिंग है, बहुत इंस्पायर्ड है, अगर आपने कोई म्यूजिक प्ले किया हो, कोई ऑर्केस्ट्रा के, बैंड के आप ऐसे हिस्से हो, या आप कोई, अगर आप इंजीनियर हो तो आप किसी सॉफ्टवेयर टीम का ऐसा हिस्सा हो, जब आप साथ मिलके काम कर रहे होते हो तो आपकी प्रतिभा जो है वो छलांग मारने लगती है। आप कई पायदान आगे निकल जाते हो और आपके पास ऐसे विचार आने लगते हैं जो आप अकेले बंद कमरे में कभी आपके पास विचार नहीं आते। राइट? सो एनी टीम which has this bonding, which has this shared space, वो आपको आपकी क्षमता से आगे ले जाती है। और वो क्यों ले जाती है? क्योंकि वो जो सृजन है वो दोनों के साथ होने से, उस तादाद के भीतर जो है वो चेतना प्रकट होती है। राइट? दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो आप जो है वो इस रूप में अगर आप देखेंगे तो काम जो आप करना चाहते हैं, अपने बच्चे को जो है वो आप अगर इनिशिएट करना चाहते हो आध्यात्मिक यात्रा में, तो आई थिंक नंबर 2 इज यू क्रिएट दैट रिलेशनशिप, एंड देन थर्डली उस रिलेशनशिप में क्रिएट होने का अगर एस्टेब्लिश हो गया, देन यू विल हैव फन, यू विल हैव लव, यू विल हैव एम्पैथी, यू विल हैव, देन यू कैन, हाउ अबाउट टेलिंग स्टोरीज? टेलिंग स्टोरीज इज अ ग्रेट मैकेनिज्म। अगर आप ध्यान लगा रहे हैं और साथ बैठ के थोड़ा सा मेडिटेशन उसने भी कर लिया, थोड़ा सा चैंटिंग कर ली, so different, you can have fun and then you can play together and then you can guide, right? उसके तल पर उतरकर अगर आप उसके मित्र हो गए तो वो आपको गाइड के रूप में भी स्वीकार कर लेगा। लेकिन अगर मित्रता नहीं है, आत्मीयता नहीं है, प्रेम नहीं है, तो फिर समझाने से कोई बच्चा नहीं समझता। और सबसे मूल चूक जो माँ बाप से होती है वो समझाने लगते हैं बच्चों को। समझाना जो है वो स्ट्रिक्ट, नो, समझाना नहीं है, उनके साथ बैठना है, उनके साथ एक सहयात्री बनकर उस यात्रा पर चलना है। उनके साथ अगर खेल सकते हो आप, हैव फन विद देम, प्ले विद देम एंड बी अ को पैसेंजर इन द जर्नी ऑफ लाइफ। सहयात्री बनकर अगर आप उनके साथ चलोगे तो फिर मेडिटेशंस हैं, कथाएं हैं, story telling is a great way, and then reading books together, watching movies together, right? Going on a journey. अगर आप तीर्थ पे जाते हो, आप माउंटेन्स पे जाते हो, आप wherever you go on an adventure together. That's how you go.
अपना एक एक्सपीरियंस जो होता है, जो एक लिमिटेड एक्सपीरियंस होता है और समझ होती है, वो बार बार ऐसे होता है कि वही बार बार आता रहता है और उसी को हम पकड़ पकड़ के अपने बच्चे को देते रहते हैं। वो एक लिमिटेशन सी हम उसे हाँ, वापस दैट मीन्स नेगेटिव इमोशंस की आप बात कर रहे हैं। एक लिमिटेड जो अपना स्पेक्ट्रम होता है, एक अपने जो डर होते हैं, सीमाएं होती हैं, उन्हीं से लीड करते रहते हैं हम बच्चों को। मैं कई बार यही पाती हूँ, अपना थॉट ही उसको दे रही हूँ। एंड दैट किल्स देम, ओके। बच्चों की चेतना को वही मार देता है। और जब आप सरेंडर कर देते हो और जब आप इस कार्य में निष्णात हो जाते हो कि स्वयं को विदा करना है, जब आप स्वयं को विदा करने के अंदर निष्णात हो जाते हो, तो फिर जो है वो बच्चे जो हैं वो खिलने लगते हैं, निखरने लगते हैं, जगने लगते हैं, और वो जो है वो अपनी पराकाष्ठा की ओर अग्रसर होने लगते हैं। फिर एक आत्मीयता आने लगती है, फिर एक समझ आने लगती है रिश्ते के अंदर, फिर एक भरोसा जगने लगता है। The highest in a relationship is the trust, no? कि भाई ये है, मेरे लिए है, मेरे साथ है, और ये जो कर रहे होंगे मेरे भले में कर रहे होंगे, राइट? सो कोई और हो ना हो, ये है मेरे लिए, तो ये जगना, ओके, एट इट्स हाईएस्ट। थैंक यू भैया, थैंक यू। ब्यूटीफुल, लवली, ओके, यस। भैया क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, बट आई एक थिंक उनका भी है, बार बार वो हाथ खड़ा कर रहे हैं। एक बार वी आर ऑलमोस्ट नियर टाइम। एक बार है लास्ट क्वेश्चन उनका भी अगर ले सके। ओके श्योर। आई थिंक ही इज रेजिंग हैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। यस, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया 8 साल हो गए हैं लास्ट सेंटर से जुड़े हुए। तो मुझे ये 8 साल में ये एक्सपीरियंस हुआ है कि जीवन की चुनौतियों के प्रति जो आपकी एक सोच कह लीजिए, आपकी शिक्षा कह लीजिए, मैं कहूँगा जो आपने सिखाया है, तो आज लाइफ और ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है। कुछ भी चूज़ करना बहुत मुश्किल हो गया है। यानी कि पहले ऐसे होता था कुछ भी कैसे भी चूज़ कर लिया, लेकिन आज कुछ भी चूज़ करना, जैसे कि तनाव है, दबाव है, लेकिन उसमें जब चूज़ करना तो कुछ चूज़ कर नहीं पाते, वहीं का वहीं रुक जाते हैं। सो यू नो, मतलब मोर क्लैरिटी इज मोर डिफिकल्ट फॉर मी। हाँ, ऐसा होता है क्योंकि अब आप संवेदनशील हो, अब आप सजग हो, और अब आपको वो बहुत सारे पक्ष दिखाई दे रहे हैं जो पहले जिसके प्रति आप जो है वो उदासीन थे, आप सुषुप्त थे। पहले बहुत सारे पक्षों के प्रति आप देखते ही नहीं थे, लेकिन अब आप उन सारे पक्षों को आप जाहिर होकर देख पाते हो, राइट? सो फिर उसमें लगता है कि अरे भाई ये करेंगे तो ये छूट जाएगा, बाएं जाएंगे तो दायां छूट जाएगा, दाएं जाएंगे तो बायां छूट जाएगा, अब चाहिए सब कुछ, राइट? सो अब क्या चाहिए? अब वैराग्य भाव चाहिए। आपकी चेतना जगने लगी है, आपकी दृष्टि जो है वो विहंगम होने लगी है, लेकिन वैराग्य अभी जीवन में उतरा नहीं है। क्लैरिटी आती है मुट्ठी ढीली करने से। जहां मोह है, जहां आसक्ति है, जहां लोभ है, जहां काम है, वहां कभी स्पष्टता नहीं हो सकती। मोह, आसक्ति, लोभ और काम, ये धुंधल का खड़ा करने के अंदर बहुत सहयोगी होते हैं। ओके, अगर धुंधला का है तो इनको विदा करना है। क्लैरिटी ही क्लैरिटी है। कंफ्यूजन इज ऑलवेज बाय चॉइस। ओके, क्या कह रहा हूं मैं? कंफ्यूजन इज ऑलवेज अ चॉइस। ओके, बिकॉज यू डोंट वांट टू डू व्हाट यू शुड बी डूइंग, because you don't want to do what you should be doing, you get confused, you confuse yourself. So confusion is a choice, confusion is a voluntary activity. Okay, beautiful. So time's up, right? We have another set of recording. We can ask questions there. अगर सब agreement में है तो let's find this up. What do you think, guys? Sure. Everyone in? Okay, we'll take another set of questions in the next recording. So, Bhaiya, it was an inspiring conversation, eye-opening, ground-shaking. And I'm so thrilled that we did this. And thank you so much. Thank you, everybody, for participating in this. This is one gemstone
in the list of my podcast. So thank you so much. Thank you so much. No problem. With a very, very heavy heart, we are closing this round and we'll be meeting again for the part 2. So stay tuned, everybody.